Hello students, how are you? I think you are well. You are enjoying the online classes, different academies. Welcome in my channel Excellence in Maths by R.P. Bhatnagar sir. Okay, today we are starting the new chapter, that is matrix. This is the new word for you. Okay, what is matrix? You listen many equations, linear equations, quadratic equations. So you know that I have written equations, two equations and three equations. These are in two variables and these are in three variables. X plus y is equal to 4, 5x plus 9y is equal to 7, 2x plus 3y plus 4z is equal to 9, and these are the three equations. Here there is not z coefficient, so we can write it as 0 into z. Right? So actually what is matrix? So it is a rectangular arrangement of elements in the form of rows and columns. रोज और कॉलम की फॉर्मेशन में जो हम लिखते हैं एलिमेंट्स को, वही एक तरीके से हमारी मैट्रिक्स बनती है. सपोज टू इक्वेशंस है. फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड इक्वेशन 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 7. तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यस, A is equal to write down the coefficient of x and y. Coefficient of x 1, coefficient of y 1, coefficient of x 5. This is 9. This is matrix A. This is the coefficient of x both and coefficient of y. Similarly, we can write it in the form of rectangle 4 and 7. Right? Now more, A is equal to 2 coefficient of x, coefficient of y, coefficient of z. Similarly, 2 coefficient of y 1, this is 0. If there is no variable, then you can write it 0, that place. This is 1, this is 1, and this is 1. Right? And b is equal to 9, 10, and 0. These are the matrix. These elements are written always in this bracket, not straight line, not line. Right? To 1, 1, 5, 5. This is row. This is row and this is row. There are two rows and two columns. This is called R1 and this is called R2. Similarly, this is called C1 and this is called C2. So there are two rows and two columns. So we will say that it is the matrix of order 2 by 2. 2 by 2, that is 2 multiplied by 2. It means row and it means column. Right? Suppose this is. It has only one column and two rows. Right? This is R1 and this is R2 and there is only one column. So we will write it. This is the matrix of order 2 by 1 because there are two rows and one column. Similarly, one row, 2 and 3. There are three rows and three columns. So this is matrix of 3 by 3 matrix. 3 by 3 order, right? Now come to this point. One row, second row and third row. There are three rows and one column. So this is called 3 by 1 matrix. Okay. And these are called the elements. This is 1, 1, 5, 9. These are elements of this matrix. ऐसे ये 4 और 7 इसके एलिमेंट्स हैं. ये सारे इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक हो गया? ये बेटा देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. इन दिस मैट्रिक्स ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1. जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 होगा. If each diagonal elements is 1 या unity, then it is called identity matrix. देखें आप unity है यहाँ पर 1, तो ये क्या है हमारा identity matrix. Now upper triangular matrix. Upper means ऊपर वाला समझ गया, triangle की फॉर्म हो उस मैट्रिक्स में. If all the elements below the principal diagonals are 0, ये कहलाता है हमारा principal diagonals. And all the elements below this principal diagonal, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट है? हमारे ये एलिमेंट है और ये 0. देन दिस इज कॉल्ड
upper triangular matrix. Now lower triangular matrix, just opposite of this, if all the elements above the principal diagonal are 0. Principal axis 0, principal diagonal हमारा ये हो गया, and above this principal diagonal these three elements are there. If these elements are there, then this is called the lower triangular matrix, and in this condition this is called upper triangular matrix. We will know about the types of matrix. Matrix के कितने प्रकार होते हैं, किस किस टाइप के matrix होती हैं. फर्स्ट है रो मैट्रिक्स. इट हैज ओनली वन रो, केवल इसके अंदर एक ही रो होती है, लाइक दिस 1 2 3. ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी. रो मैट्रिक्स, इट हैज ओनली रो 1 3 5. इट हैज ओनली वन रो. इसमें केवल हमारी एक ही रो है लेकिन 3 कॉलम्स है. तो इफ इट हैज ओनली वन रो देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. राइट. नाउ कॉलम मैट्रिक्स, नेम से क्लियर है कि कॉलम, इट मींस इट हैज ओनली कॉलम, वन कॉलम. सपोज कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम थी ना वर्टिकल पोजीशन 5 6 7, तो इट हैज ओनली वन कॉलम बट 3 रोज. रोज कितनी भी हो सकती हैं बट इट शुड बी ओनली वन कॉलम, देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. राइट. जीरो मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट इज जीरो. मैट्रिक्स का सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए. 0 0 0 0 0 0, ये all the elements 0, then it is called zero matrix. Clear हो गया. Now square matrix. In square matrix number of rows is equal to number of column. Example बता देता हूँ. Number of rows and number of columns 0 1 4 5 6 7 9 2 1. तो आप देख रहे हो it has 3 rows and 3 columns. तो therefore it is known as square matrix. वो 2 by 2 की भी हो सकती है मैट्रिक्स हमारी 2 5 0 4. तो it has 2 columns and 2 rows. तो therefore it is known as square matrix. It means if number of rows is equal to number of column, then it is called square matrix. Clear हो गया. Now diagonal matrix. All non-diagonal matrix are 0. All non-diagonal elements are 0. इस डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे और बाकी सब एलिमेंट्स उसके 0 होंगे. मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो छोटे सा बना करके, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स शो करने. इसमें जो 1 0 और यहाँ पर भी 0 और ये 4 कर दिया मैंने. आप देख लो केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं एंड अदर 2 एलिमेंट्स आर 0. 3 by 3 की हम लिख सकते थे. 3 by 3 के एलिमेंट्स में हम ये बना सकते हैं. देखो 1 0 0 0 4 5, यहाँ पर भी 0 कर देते हैं. और लेकिन ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है. हाँ, तो 4 0 0 और 9. ओनली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शो कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स हमारे इसमें क्या शो कर रहे हैं? 0. All non-diagonal elements are 0, then it is called diagonal matrix. Clear? Now, scalar matrix. All diagonal elements are equal. बिल्कुल इसी के फॉर्मेशन है. अगर फिर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल कर दें हम, जैसे यहाँ पर 2 है या 4 है 9 है 1 4 9 है, तो हम इसको क्या कर देंगे स्केलर मैट्रिक्स के लिए कि एलिमेंट्स इक्वल होंगे. सपोज करो 5 0 0 0 5 0 0 0 5. तो these elements must be equal, then it is called scalar matrix. Yes, now order of matrix. तो order of matrix, ये मैट्रिक्स के मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कुछ 1 0 0 2, ये 1 2 3 4. I have written 4 examples on the board. What is the order of the matrix? Order of the matrix कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? रोज एंड कॉलम से मिलकर के हमारा ऑर्डर बनता है. हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? फर्स्ट रोज देन कॉलम. रोज कितनी है इसमें? 1 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो इट मींस दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. राइट. नाउ
come this point. How many rows are there? One row and two row. There are two rows and column 1, 2, 3. This is R1, this is R2, C1, C2 and C3. So there are two rows and three columns. So it is the order of 2 by 3. 2 by 3. So first write rows and then column. So ये जो first number है, it shows rows and this shows columns. Clear? Now, first row, second row and third row. There are three rows, so 3 multiply. One column and two column. 3 by 2. It is the order of 3 by 2. Right? Similarly, R1, R2, R3, C1, C2 and C3. So this is the order of 3 by 3. 3 rows and 3 columns. So if the number of rows and number of columns are equal, then these are called square matrix. Right? If the number of rows and columns are equal, right? So these are called square matrix. And now comparable matrix. हम matrix की compare कब कर सकते हैं? तो we can compare the matrix only when they are of the same order. Right? For example, suppose this is 2 by 2 matrix and another matrix also 2 by 2. Then we can compare it. Otherwise no. Suppose one is matrix of 3 by 3. So we cannot compare it. Only same orders matrices will be compared. 2 by 2 matrix can be compared with 2 by 2 and 3 by 3 matrix is compared with 3 by 3. क्लियर हो गया? मैं समझता हूँ ये बात भी. अब आता है इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स में भी वही है. इक्वल मैट्रिक्स में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए. अब इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? सेम ऑर्डर होना चाहिए. और ये फर्स्ट सपोज करो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और ये x, y, z, p है. तो इक्वल मैट्रिक्स मीन्स they can be compared and this element must be equal to that element and this element is equal to this element और जो एलिमेंट हमारे लिखे हुए हैं वो सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए. ठीक है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को बेटा? A11, A12, A21, A22. A11 की मीन्स क्या शो करता है? फर्स्ट रो में फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट है. ये 1, 2 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है. 2, 1 को क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है. 2, 2 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. सिमिलरली और आगे भी बनाना चाहे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं. A11, 12, A13 और ये आ जाएगा A23. और अगर आगे बनाना चाहे तो बेटा ये A31 हो जाएगा, A32 और A33. ऐसे भी हम कितने भी आगे तक लिख सकते हैं. ये कहलाते हैं कि एलिमेंट्स. These are called the elements. Yes, beta. Question number 7. Two matrices are given in equal form. Then find the values of x and y. तो आप देख रहे हो ये both are of the same order. Then we can compare it. जब ये सेम ऑर्डर की होती है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर कैसे करेंगे हम? इस एलिमेंट को इसके इक्वल कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी अभी 3 2 6 और इस एलिमेंट को इसके इक्वल रख दीजिए. माइनस वाई इक्वल टू 3 तो वाई इक्वल टू बेटा -3 आ गया. ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. बस केवल कंपेयर करने से काम चल गया. अब आ जाइए इसमें यहाँ भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इसका ये एलिमेंट इसके इक्वल कर देंगे आप. माइनस वाई इक्वल टू 2 देयरफॉर वाई इक्वल टू -2. लीजिए फर्स्ट आंसर आ गया. अब किसको कंपेयर करना है? इसको इससे कंपेयर करो. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से. तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. -2 इज इक्वल टू 1. 3x इज इक्वल टू 3. देन x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा 3/3. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन. यहाँ कंपेयर कर दो आप. z इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. एंड दिस 2x minus y
इज इक्वल टू 0। ये हमने कंपेयर कर दिया। बेटा हमें वैल्यूज एक्स वाई की निकालेंगे तो क्या करोगे आप, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो ना सीधा सा, है ना। तो ये वाई से ये प्लस हो गया और यहाँ माइनस करो और ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। तो एक्स की वैल्यू बेटा 1 हो गई। अब एक्स की वैल्यू 1 आप किसी में भी रख दीजिए, इसमें रख देते हैं एक्स की वैल्यू 1, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा बेटा इधर जाके -2 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू हमारी आ गई -2। ये -2 नहीं, वाई को हमने उधर शिफ्ट कर दिया और माइनस को बेटा +2 आ गया ना, ये बात सही है। तो y इक्वल टू 2 आ गया। हमें फाइंड आउट करनी है इसमें x प्लस वाई की वैल्यू, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 आ गया। यही आंसर है आपका। यस बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। राइट, ये मैट्रिक्स इज गिवन है 2। देखो ये भी बेटा 2/2 की मैट्रिक्स है एंड दिस इज आल्सो 2/2 मैट्रिक्स। तो देन वी कैन कंपेयर इट। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसको फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करेंगे और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल करेंगे। तो 2a + b इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। a - 2b इज इक्वल टू -3, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2a। this putting b is equal to 4 - 2a in the second equation. So now come this side, a minus 2 and in place of b write 4 minus 2a is equal to -3. a minus multiply by 2 inside the bracket, 2 4 the 8 and 2 2 the 4, a is equal to -3. Now 4a plus a 5 हो जाएगा और आपका ये इधर 8 प्लस में आ जाएगा। तो 8 में से बेटा 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/5 मीन्स 1 आ जाएगी। ठीक, अब पुटिंग दिस a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 2a है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4 माइनस 2 ये आ जाएगी 2। सिंपल इक्वेशन। नाउ कंपेयर दिस थर्ड एलिमेंट टू दिस इक्वल एंड दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। तो 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 and 4c plus 3d is equal to 24. Now find the value of d from this part, from this equation. So d is equal to 5c minus 11, putting in equation 4 in place of d. तो 4c plus ये आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया है 4c plus 3 और 3 और ब्रैकेट में 5c minus 11, ये जो वैल्यू मेरी d निकाली थी is equal to 24। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 11 जा 33। फिर शिफ्टिंग कर लेंगे जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 15 + 4 19c और 33 + 24 57, c इज इक्वल टू 57/19। तो वो 19 3 जा 57, 3 आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो d इज इक्वल टू 5 × 3 15, 15 - 11 मैंने यहाँ कर दिया है, 15 - 11 4 आ गया और ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है नंबर 9 भी। यस बेटा, ये भी देखिए सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इनको भी हम कंपेयर कर देंगे। तो पहले देखो एक्स वाई, इससे इसकी कंपेयर करेंगे। 2x - 3y इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको इसके इक्वल करेंगे। x + 4y इज इक्वल टू 6, दिस इज second equation. Now from second, x is equal to 6 - 4y, putting in first, this is first equation. So 2 × 6 - 4y minus 3y is equal to 1. 6 2 = 12 minus 8y minus 3y is equal to 1, माइनस कितना हो जाएगा 11y is equal to 1 minus 12 minus 11y is equal to -11, y is equal to बेटा 1 आ गया। एक आंसर आ गया y is equal to 1, y is equal to 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देन x इक्वल टू 6 - 4 1 जा 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। नाउ कम टू दिस पॉइंट, a - b इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज इक्वल टू 29। तो 3a + 4b
is equal to 29. This is suppose third equation, and a minus b is equal to minus 2. This is fourth equation. कंपेयर हम कर सकते हैं if they are of the same order. Now from a is equal to b minus 2, putting in third. This is third equation. So 3 into b minus 2 plus 4b is equal to 29. 3b minus 6 plus 4b is equal to 29. 3 plus 4 हो जाएगा 7b is equal to 29 plus 6. 7b is equal to बेटा 35 हो गया, और b is equal to 35 upon 7, 5 आ जाएगा. एक आंसर हमारा b का हो गया. और b को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन में. देन a is equal to b minus 2 है ना, तो 5 minus 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ये आंसर हो गया. Yes बेटा, this is last question of this exercise. Question number 10. Write the number of all possible matrices of order 2 by 3 with each entry 1 or 2. And second part, write the number of all possible matrices of the order 2 by 2 with each entry 1, 2 और 3. तो पॉसिबल हमें मैट्रिसेस बतानी है और ऑर्डर 2 by 3 की, और हमें जो एंट्री दी है 2 एंट्रीज दे रखी हैं. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 by 3 मैट्रिसेस होंगे 6. ठीक है, 2 रोज होंगी जिसमें 3 कॉलम होंगे. तो टोटल जो होंगे हमारे एलिमेंट्स वो कितने होंगे? 2 तो इसमें रोज हैं और 3 कॉलम्स है ना. तो 2 by 3 मीन्स टोटल एलिमेंट्स होंगे उसमें 6. नंबर ऑफ एंट्रीज गिवन है, वो गिवन है 2 हमारे पास. जो 0 है 1 है, कोई सी भी एंट्रीज हो सकती हैं. तो पॉसिबल मैट्रिसेस जो बनेंगे 2 raised to the power 6, दैट इज 2 raised to the power 6 कितना हो जाएगा? 2 to the 4 to 8 to the 16 to the 32 to the 64. राइट. नाउ सेकंड पार्ट, टोटल एलिमेंट्स इन 2 by 2 मैट्रिक्स. 2 by 2 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा? 4 एलिमेंट होंगे. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4. नंबर ऑफ एंट्रीज जो कि मैंने कितनी दे रखी है? हमें 3 दे रखी है. एक 1 है, 2 है और 3 है. टोटल एंट्रीज कितनी हो गई? नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास हो गई 3. नाउ नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 raised to 3 raised to the power 4, that is 81. And this is the answer. Okay, enjoy, and we will try the next exercise tomorrow.